This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Good evening. Welcome back to the next session of MSTE 002, that is Industrial Statistics Second. And today we will cover the first unit of the fourth block, time series modeling. And the first unit of this block is trained component analysis. Okay. So first in this block we will study, in this unit we will study the time series, various component of time series, and basic models of time series, that is additive and multiplicative model, smoothing, and estimation of trend by curve fitting, and measure of trend effect using centered moving average. Today, as I have yesterday said, that today we will cover only the one unit of this block, and you are totally exhaustive of the attending the class of MST3, that is probability theory. So today we will try to take the class only 1 hour, and we try to complete this unit and at least one lab, one session of the lab MSTL00, which is based on this unit. Okay, so now we start with the introduction of time series. Time series means any data, any characteristic which we measure with reference of time is called time series. It means that कोई भी data अगर हम timely measure कर रहे हैं, it is data of the corona patient, death of corona patient, GDP of different years, sales of a particular item in different years, different seasons, different months, days. So they are all the time series. Generally, we record the data in chronological order. Chronological order means timely. So if we record the data with reference of time, then collected data is called the time series. So in this unit, with the help of time series, generally we use the time series to forecast of the future. For example, if a salesman, या अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जुलाई एंड तक 60 लाख बेड हमें चाहिए. तो वो जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जो आज का सिनेरियो चल रहा है, उसके बेस पे वो फोरकास्ट कर रही है. ये लगभग जुलाई एंड तक अगर यही सिचुएशन चलती रही तो हमारे पास कोरोना कोविड-19 के 60,000 पेशेंट होंगे इन दैट. So time series is used to forecast, and nowadays we use time series. We use modern time series, yani modeling time series to forecast. And today we will study the क्या कहते हैं बहुत पुराना जो सिनेरियो था कि टाइम सीरीज को हम किस तरह से स्टडी करेंगे. टुडे हम वो करेंगे. और जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं, AREMA, generally they are used nowadays for analysis or forecasting of time series. So start the time series. The time series is a collection of observation. Yes, time series is a collection of observation made sequentially over a period of time. Time series is a collection of observation या data बोल सकते हैं, collection of data made sequentially over a period of time. Sequentially हम measure करते जा रहे हैं एक period of time के लिए. So in other words, the data on any characteristic collected with respect to time over a span of time is called a time series. तो ये time क्या हो सकता है? Generally years में भी हो सकता है, quarters में हो सकता है, monthly हो सकता है, day हो सकता है, seconds में भी हो सकता है. कोई भी टाइम का कोई भी यूनिट टाइम की हम इसके लिए ले सकते हैं.
तो जनरली जो हमारी टाइम सीरीज होती है, सपोज कर रहे हैं अगर हम सेल की बात कर रहे हैं या प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कोई आइटम उसका प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट ईयर है, मान लेते हैं 2001 से लेके, और ये प्रोडक्शन लिया हुआ है, मैट्रिक टन में लिया हुआ है। जो ये डिफरेंस आ रहा है टाइम, ये 40-20 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर वो 20-32 हुआ, फिर 40 हो गया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस रीजन की वजह से है, हम यहाँ पे ये सर्च करने वाले हैं। जनरली जो टाइम सीरीज है, जो टाइम सीरीज की वैल्यूज हैं, जनरली उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई टी। यहाँ पे टी जनरली ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और टी जो हमारा है इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये विद रेफरेंस टू टाइम कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम यहाँ नोटेशन यूज करेंगे वाई टी। जैसे रिग्रेशन में तो हमने y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x ऐसे लिया था, तो वहां पे तो y लिया था, तो y में कुछ भी हो सकता है ये भी हम टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हों, पर टाइम सीरीज में हम y ना रिप्रेजेंट करके उसको y से इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे जो t है वो टाइम को indicate करता है। हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है 2032 आया, तो ये किस रीजन की वजह से है? तो इसे बोलते हैं हम the main reason behind the variation in the time series may be due to trend, ट्रेंड की वजह से हो सकता है। दूसरा सीजनल इफेक्ट, इस सीजन की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। थर्ड साइक्लिक इफेक्ट, और फोर्थ हमारा इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, तो चार तरह के इसमें हमने, अगर हम टाइम सीरीज की बात करें, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट टाइम सीरीज के टाइम सीरीज में हमारा जो वेरिएशन है वो 4 रीजन से हो सकता है। ट्रेंड की वजह से, सेकंड सीजनल इफेक्ट हो सकता है, साइक्लिक इफेक्ट हो सकता है, और इरेगुलर। अब ये इफेक्ट हैं क्या और कैसे इनको मेजर करेंगे, तो फर्स्ट यूनिट हमारी इसी के ऊपर डिवोटेड है। तो फर्स्ट यूनिट में हम पहला इफेक्ट हम स्टडी करेंगे, और सेकंड यूनिट में सेकंड वाला। तो चलिए, इसको तो ये सब चीजें अभी बाद में वापस आएंगी, तो मैं वहीं पे चलता हूँ। मेन जो इसका एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है, डिफाइन टाइम सीरीज एंड राइट्स या डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज बताने आपने क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जनरली the components, there are 4 components in time series: trend, seasonal, cyclic and remaining variation, या irregular fluctuation, या random. There are 3 names of the last one. Remaining variation यानी कुछ तो ट्रेंड की वजह से आया, कुछ सीजनल की, कुछ साइक्लिक की, तो जो भी बाकी जो वेरिएशन बचा उसको नाम दे दिया रिमेनिंग वेरिएशन, या कहा इरेगुलर वेरिएशन, और या रैंडम कंपोनेंट। ये हो सकता है कि जो हमारा सेल है वो किसी मंथ में बहुत कम आई, क्या रीजन हो सकता है कि वहाँ पे हो सकता है कि रैंडम इफेक्ट आ गया हो। रैंडम इफेक्ट मतलब जैसे फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है, फ्लड आ गया, या लॉकडाउन हो गया, तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इस कारण रैंडम कंपोनेंट या इरेगुलर, जिसका कोई पैटर्न नहीं है। तो चलिए पहले लेते हैं, सबसे पहला है ट्रेंड। ट्रेंड कंपोनेंट क्या है और कैसे इसको स्टडी करेंगे। यूजुअली टाइम सीरीज डेटा शो रैंडम वेरिएशन, क्योंकि टाइम सीरीज है कि आज हमारा टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो आज टेम्परेचर हमारा अगर 42 है, तो जरूरी निकल 42 हो, रैंडम वेरिएशन, रैंडम है। but but over a long period of time they may be a gradually shift in the mean level to a higher or lower level। पर अगर हम एक लॉन्ग टाइम पे देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जाएगा टाइम इसका। टाइम अगर टेम्परेचर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम लॉन्ग पीरियड पे देखें टेम्परेचर की क्या स्थिति है, तो हमें दिखाई देगा या तो वो हाई हो रहा है या वो लो हो रहा है। अपने जो ग्रेजुएट दिस ग्रेजुएट शिफ्ट इन द लेवल ऑफ टाइम सीरीज इज नोन एज ट्रेंड। तो अगर इस तरह को वेरिएशन दिखाई दे रहा है कि अपवर्ड, हो सकता है कि बीच में इस तरह फ्लक्चुएशन रहे हों, पर कुल मिला के डेटा की जो स्थिति है वो क्या है कि डेटा हमारा अगर इसको प्लॉट करें तो टाइम जनरली हम टी इधर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई टी यहाँ पे लेंगे, तो इधर टेम्परेचर ले लिया। तो ये कभी कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है कि जरूर नहीं कि वो 40 के बाद सीधा 43 आए, 44 आए, हो सकता है बीच में टेम्परेचर डाउन भी रहा है, तो ऐसे फ्लक्चुएशन भी करे। पर ओवरऑल क्या हो रहा है,
ओवरऑल टेम्परेचर हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो जनरल जो ट्रेंड है वो जनरल टेंडेंसी बताता है डेटा की कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या वो कांस्टेंट है। तो इट मींस द जनरल टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रेंड। तो जनरली जब हम ट्रेंड की स्टडी करते हैं तो हम एक लॉन्ग पीरियड, एक छोटा पीरियड नहीं, 12 मंथ्स का या 1 मंथ का पीरियड नहीं लेंगे, एक लंबा पीरियड लेंगे, डिफरेंट ईयर्स का। तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा कम बन रहा है उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो ओवरऑल बढ़ रहा है या ओवरऑल वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ओवरऑल बढ़ रहा है तो दिस टेंडेंसी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ट्रेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो ट्रेंड कंपोनेंट। अब चलिए बताइए कोई एग्जांपल जहां पे हमारा डेटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यस, कोई बताएगा? सर प्रेजेंटली कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्रेजेंटली हमारा कोविड केसेस क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कोई डिक्रीजिंग बताएगा? बट सर ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कोविड है, इट इज नॉट ईयरली डेटा, सो वी कांट टेक इट एज ट्रेंड। जनरली हम कहते हैं कि ट्रेंड जो है एक वो ईयरली डेटा में देखा जाता है, पर हम शॉर्ट पीरियड में ट्रेंड देख सकते हैं। पर एक लॉन्ग पीरियड, अब पीरियड इतना छोटा है हमारे पास तो हम इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, पर वैसे अगर हम जनरल बात करें, अगर डेटा हमारे पास काफी बड़ा है तो हम फिर मतलब डिफरेंट ईयर्स में देखते हैं। पर यहाँ भी हम कह सकते बट सर टू कोट, हेलो हाँ जी, sir, if you want to quote some example in exam of trend, so we can't quote it of COVID because so yearly नहीं है. We can मतलब only like population or temperatures or like that, या कुछ और डेटा like birth data and all, ये डेटा शायद ले सकते हैं, not COVID भी, because COVID का yearly नहीं, वो quote कैसे करेंगे एग्जाम्पल? जरूरी नहीं कि ईयरली डेटा में ही ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, अगर हम छोटा डेटा में देखना चाह रहे हैं तो हम देख सकते हैं। यहाँ भी अगर हम छोटे ही प्लॉट कर रहे हैं, हो सकता है कि सीजन की वजह से ये चेंज हो जाए, पर जो आज का सिनेरियो है अगर उसको हम प्लॉट करें, डिफरेंट डेज को प्लॉट करें या कुछ करें, तो वो हमें एक ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखाई देगा। तो कह सकते हैं वैसे जनरली मेजर तो हम ट्रेंड को ईयरली में ही करते हैं। आप ठीक कह रहे हो कि मेजर तो हम जनरली ट्रेंड को ईयरली में करते हैं, पर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भी जो इसका टेंडेंसी है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल। चलिए कोई डिक्रीज के लिए? सर जीडीपी। जीडीपी हमारे डिफरेंट ईयर्स में डाउन जा रही है। कोई ऐसा भी है जहां पे कांस्टेंट हो कुछ, ना टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है? कोई डेटा हो सकता है? यस, ऐसे कोई हो सकता है डेटा? सर सॉल्ट कंजम्पशन। सॉल्ट कंजम्पशन इन हाउस डिफरेंट ईयर्स, हाँ हो सकता है। सॉल्ट तो नहीं यूज करते हैं ना हम, तो इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट रहता है। यस यस, अच्छा एग्जांपल आपने कोट किया है, गुड, बढ़िया। चल तो फिर लेते हैं हम तो जनरली जरूरी नहीं कि ट्रेंड एक पर्टिकुलर इसमें ही हो, लाइन में ही हो, अपवर्ड डायरेक्शन या ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी डेटा आ सकता है। ऐसे बन सकता है डेटा। तो दिस इज द कर्वी लीनियर ट्रेंड, यहाँ पे कर्व की फॉर्म बन रहा है। तो हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो लीनियर करेंगे, बाकी कर्वी भी हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट लेते हैं। तो ये डिफाइन करने के लिए आएगा तो कभी तो ऐसे पूछ लेता है, राइट डाउन 4 कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज या राइट डाउन ऑल द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एंड डिस्क्राइब एनी वन, या कभी वो चारों को ही डिस्क्राइब करा लेता है। तो उसके लिए ये है कि एक डेफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, कुछ ग्राफ बना दीजिए। जैसे यहाँ पे तो इन्होंने ग्राफ नहीं बनाया, पर आप बना सकते हो ना ट्रेंड का ग्राफ। तो डिफरेंट ईयर्स में आप सिंपल एक यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन का दिखा दीजिए ऐसे, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। एक डिक्रीजिंग का बना के दिखा दीजिए तो आपके पेज भर जाएंगे। एक कांस्टेंट का आप सॉल्ट वाला एग्जांपल कहना चाह रहे हो, ये बना सकते हैं। तो ट्रेंड के 3 ग्राफ बन गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं इसमें कोई आपने स्केल मेजर करना है या कुछ करना है, बस एक यहाँ पे दिखाओ टी, यहाँ प्रोडक्शन लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टी लिखो, यहाँ प्रोडक्शन लिख दो। हो सकता है कि प्रोडक्शन डाउन भी तो हो सकता है प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट कंजम्पशन लिख दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया, बन गए 3 ग्राफ हमारे।
तो थोड़ा लिख के थोड़ा ग्राफ बना के, ग्राफ एक्चुअली बर्ड व्यू बोलते हैं ना, बर्ड व्यू, क्लियरली हाँ इसको पता है, इसका मतलब ग्राफ देख के ही टीचर ये आइडिया लगा ले कि हाँ इसको ट्रेंड के बारे में पता है। चल, तो understand that a trend is in a general smooth long term and average tendency of the data series. Increase or decrease may not necessarily be in the same direction, although the given period a time may shows a linear or non-linear trend. If a time series data are plotted on a graph, the points on the graph cluster more or less around a straight line. अगर हमारे mostly point एक straight line के आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि linear trend इसमें exist कर रहा है. But the point plotted on the graph do not cluster more or less around a straight line. The tendency shows the data is called non-linear and curvilinear. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि इस तरह से curvilinear बन सकता है, इन्होंने शायद कहीं पे दिया है ग्राफ। नहीं, इन्होंने कोट नहीं, तो आप बना सकते हैं ग्राफ जो मैंने आपको बताया। तो ओके चलिए सेकंड पे चलते हैं, सीजनल कंपोनेंट। आपने देखा होगा कि सीजन की वजह से भी टाइम सीरीज में कोई भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे हम लोग जनरली तो जो ये सीजन्स हैं ये बियॉन्ड द ह्यूमंस हैंड्स हैं एंड नेचुरल फैक्टर्स। तो द टाइम सीरीज वेरिएशन व्हिच अकर्स ड्यू टू द rhythmic or natural factors and operate in a regular and periodic manner over a span of less than or equal to 1 year are termed as seasonal variation. तो वो वेरिएशन जो हमारे नेचुरल फैक्टर की वजह से है, जैसे आपका अब टेम्परेचर पीक पे चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो मार्केट की अगर बात करें तो जनरली इस टाइम पे एसी, कूलर, फ्रिज इनकी सेल में तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आया, इसकी सेल में जो इफेक्ट आया वो किसकी वजह से आया, जो नेचुरल फैक्टर्स थे उनकी वजह से इफेक्ट आया। तो टाइम सीरीज में अगर नेचुरल फैक्टर की वजह से कोई इफेक्ट आ रहा है तो दिस इज कैटेगराइज्ड एज सीजनल कंपोनेंट। पर क्योंकि सीजन हमारे यहाँ पे विद इन 1 ईयर आता है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो विद इन 1 ईयर होगा। और जनरली जो हमारे सीजनल कंपोनेंट हैं, एक तो होता है कि नेचुरल फैक्टर की वजह से हो, दूसरा हम लोगों ने कुछ अपने ट्रेडिशन बना दिए तो वो भी एक सीजनल इफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने क्या कहा कि भाई हमारा जो बुक्स की सेल्स है, अगर बच्चों की बात करें तो बुक्स की सेल्स कब होती है आजकल, पहले तो जब हम लोग पढ़ते थे तो जुलाई में बुक्स आती थी, पर अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, अब बुक्स मार्च या फेब में ही आने लगी। तो बुक्स की जो सेल है वो मार्च में बढ़ जा रही है, तो वो हो गया ह्यूमन मेड में जो कस्टम बना दी। जैसे हम वैसे तो हम लोग क्लॉथिंग तो हम हमेशा खरीदते हैं, पर जब मैरिज सीजन चलता है तो हम वहाँ पे ज्यादा क्लॉथिंग करते हैं या ऑर्नामेंट ज्यादा खरीदते हैं, गिफ्ट ज्यादा खरीदते हैं। तो वो भी हमने वो भी हमारा क्या है, उसमें जो सेल में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो हम लोगों की वजह से आ रहा है कि हमने ऐसे कस्टम बना लिए अपने। तो दिस इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज अ सीजनल कंपोनेंट। तो सीजनल कंपोनेंट इज कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स, वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज द ह्यूमन मेड। तो उसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं पे दिखा होगा कहीं पे natural forces and man-made conventions. Variation time series that arise due to change in the season or weather condition and climate changes are known as a seasonal variation. For example, the sale of umbrella, raincoat, these are the fast in the air condition and so on. Man-made may be variation in time series due to the changes in the habit, fashion, customs, and conventions of people in many societies are termed as a seasonal variation from man-made convention. For example, in our country, the sale of gold and silver ornaments goes up in Deepavali, Dashera, Durga Puja और मैरिज सीजन। फिर आता है थर्ड तरह का वेरिएशन होता है साइक्लिक कंपोनेंट। साइक्लिक कंपोनेंट और जनरली जो हमारा सीजनल है ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। मैं इसका अगर ग्राफ बना के देखूं, ये मान लेते हैं हमारा एक 1 ईयर है जिसमें 4 क्वार्टर्स हैं। तो जनरली हमारा ये सीजनल वेरिएशन भी इस तरह से मोशन करता है, पर इसका जो पीरियड है वो लेस देन 1 नहीं, गलत बन गया, ईयर, इसका पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होगा। जो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा उसका अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 ईयर, सॉरी 12
ठीक है, तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये जून है, ये जून मंथ है हमारा, और ये सेल हमारी एसी या फ्रिज की सेल है, तो जून में पीक पे होगी, तो जो नेक्स्ट जून आएगा वहां पे पीक होगी। तो जो इसका साइकिल है वो विद इन 1 ईयर तक होगा। और जरूरी नहीं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ये वाला, वो जरूरी नहीं कि वो सेम होगा हर हर ईयर के लिए, पर ये है कि वो पीक होगा। अगर हम पूरे ईयर की कंपैरिजन करें तो उस टाइम पे वो पीक होगा। ठीक है, ऐसे ही जो अगला कंपोनेंट आ रहा है वो साइक्लिक। साइक्लिक तो ये भी है, यहाँ भी साइक्लिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है, पर हमने कहा यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या किया कि जिस जिसका पीरियड लेस देन 1 होगा उसको तो हम सीजनल कंपोनेंट कहेंगे, और जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा उसको हम साइक्लिक कंपोनेंट कहेंगे। तो जनरली साइक्लिक कंपोनेंट हमारा या साइक्लिक इफेक्ट जो है वो जनरली बिजनेस में मिलता है। बिजनेस में कैसे मिलता है तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, पर so apart from seasonal effects, sometimes is exhibit variation in the fixed period of time due to the other physical causes. For example, economic data are sometimes thought to be affected by business cycles with a period varying from 3 to 10 years. तो यहाँ भी वेरिएशन तो चलेगा, और अदर देन अदर फिजिकल कॉजेज की वजह से। तो द साइक्लिक कुड बी caused by a period of moderation। देखिए जनरली अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, अगर आपको थोड़ा आइडिया होता है एग्रीकल्चर के बारे में, बिजनेस में तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे काम करते हैं लोग, पर एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें कि देखिए जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उस टाइम पे दाल के रेट बहुत ज्यादा थे, तो फिर इन्होंने कहा कि दाल लगाइए, दाल लगाओ, है ना, पल्सेस लगाइए। तो पल्सेस लगाने पे क्या हुआ कि पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा क्या हुआ, उसकी सेल, उसका सेल कम होगी, तो सेल कम होने से उसके रेट क्या हुए, वो डाउन होने शुरू हो गए। फिर लोगों ने उसको प्लांटेशन करना बंद कर दिया, उसका नहीं लगाएंगे, इसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो फिर टाइम क्या हुआ, फिर शॉर्टेज हो गई, फिर वो इंक्रीज हो जाना शुरू हुआ था प्राइस। तो इस तरह से साइक्लिक पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस साइक्लिक पैटर्न का जो पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर होगा, एक साल में नहीं होगा, मोर देन 1 ईयर। एक साल में ज्यादा हुआ, फिर अगले साल पता चला वो कम होगा। तो इसमें जो ये पीरियड है इसको 4 पार्ट्स में, एक साइकिल को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हम लोग साइकिल बना लेते हैं, यहाँ से साइकिल शुरू करते हैं, यहाँ पे पूरा हो गया साइकिल, या अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ साइकिल, यहाँ पूरा हो गया। तो जहाँ पे पीक है उस, यहाँ पीक था तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, यस, प्रोस्पेरिटी, बूम, सबसे ज्यादा। फिर रिक्रेशन यानी डिक्लाइन शुरू हो गया, इस पार्ट को रिक्रेशन बोलते हैं। फिर हम डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब बिल्कुल बहुत कम हो गया, डिप्रेशन में हो गया। और फिर रिकवरी शुरू हो गई, ये रिकवरी। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको बूम कहा हमने, फिर यहाँ पे इसको कहा हमने रिक्रेशन, रिक्रेशन डिक्लाइन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे हम बिल्कुल वो डिप्रेस हो गया, बिल्कुल कम हो गया, डिप्रेशन बोल दिया इसको। और फिर यहाँ से फिर रिकवरी शुरू हो गई, उसे रिकवरी। तो जनरली ई साइकिल है द 4 पार्ट्स। The oscillatory variation with a period of oscillation of more than 1 year are called the cyclic variation or cyclic components। ओके, तो आपके कोर्स में वैसे तो डेफिनेशन में तो चारों हैं, पर आप जब मेजर करेंगे तो आपके यहाँ पे 2 ही हैं। एक हमारे पास ट्रेंड को हम मेजर करेंगे, दूसरा हम सीजनल इफेक्ट को मेजर करेंगे। अब बचता है 4th, इरेगुलर कंपोनेंट, the long term variation, apart from these regular variation, random or irregular variation which are not accounted by trained seasonal cyclic component exist in almost, मतलब इनके अलावा भी एक ऐसा component है जो सभी टाइम सीरीज में मिलता है। In most cases these irregular variation are random, irregular are unpredictable and are caused by short term unanticipated and non recurring factors that affect the time series। कुल मिला के क्या है कि irregular component is a random component which magnitude and prediction is not possible, and
they are occur due to the some causes, some irregular causes. For example, as the strike in a company, तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इट इज अ इरेगुलर कंपोनेंट। ये नहीं पता कि स्ट्राइक कब हो जाए, ठीक है, तो या फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो भी एक रैंडम कंपोनेंट है, उसका भी आप पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कब होगा ऐसा। तो अगर इस तरह से कोई वेरिएशन आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर कंपोनेंट। अच्छा, तो ये एक इन्होंने सीरीज बनाई, इसमें सभी कंपोनेंट दिखा दिए। ये तो दिखा दे रहा है ट्रेंड दिखा दिया, ये हमारा साइक्लिक दिखा दिया है, ठीक है। ये शायद उन्होंने शॉर्ट टर्म वेरिएशन, कभी कभी हम लोग जो टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स को टू पार्ट्स में दिखा देते हैं, थ्री पार्ट में सॉरी। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ट्रेंड, एक शॉर्ट टर्म का मतलब सीजनल या सीजनल और साइक्लिक, और इरेगुलर मतलब फोर्थ वाला इरेगुलर रैंडम कंपोनेंट। तो अब आता है बेसिक मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज। अब ये 4 फैक्टर हमारे हो गए। ये अगर YT है तो YT में हमने 4 फैक्टर बना लिया। ट्रेंड को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सीजनल ST से, और CT को साइक्लिक कह दिया, और इरेगुलर। अब ये चारों जो कंपोनेंट है इस तरह से कनेक्टेड है आपस में। क्या ये प्लस हो रखे हैं आपस में, ये ट्रेंड का इफेक्ट प्लस साइक्लिक का, सीजनल का, और प्लस इरेगुलर कंपोनेंट, क्या ये प्लस है आपस में, क्या ये मल्टीप्लाई? तो जनरली 2 मॉडल, वैसे 3 मॉडल बनते हैं, एक एडिटिव मॉडल, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल कहता है कि भाई ये चारों जो भी इनका इफेक्ट है, ट्रेंड इफेक्ट, साइक्लिक और साइक्लिक और इरेगुलर, ये आपस में एडिटिव है, यानी ये कुल मिला के इन चारों का प्लस करने के बाद ही टाइम सीरीज में वेरिएशन मिलता है। कुछ साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इनका जो इफेक्ट है वो मल्टीपल है, मतलब ये आपस में जो इनका जो YT पे जो इफेक्ट डाल रहे हैं मल्टीपल होने के बाद डाल रहे हैं। तो 2 मॉडल हम बनाए उन्होंने, एडिटिव मॉडल और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है। इनका हम यूज करेंगे आगे चल के, जब हम सीजनल वेरिएशन पढ़ेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। इनके कुछ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो एक तो ये कहा कि साइक्लिक इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल साइकिल्स, मतलब जो साइकिल इफेक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये उसमें ऐसा कोई ऊपर नीचे बहुत कांस्टेंट ही रहेगा वो, ठीक है। सीजनल इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी 1 ईयर, और सीजनल इफेक्ट भी कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होगा। और रैंडम वेरिएबल्स विद मीन, जो इरेगुलर होंगे उसका मीन 0 होगा, मतलब कभी तो प्रोडक्शन कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कुल मिला के उसका जो इफेक्ट आएगा इस तरह का स्ट्राइक से या कुछ इस तरह से, वो सब 0 होगा। हम मानते हैं जनरली जो हमारा कुल मिला के अगर कहें तो एरर कंपोनेंट ही हो गया, और एरर कंपोनेंट को हम जनरली मानते हैं कि उसका मीन 0 होगा, तो ऐसे यहाँ पे इसका मीन भी हमने 0 माना है। कुल मिला के इसका जो इफेक्ट होगा वो 0 के आसपास। तो ये कुछ एजम्पशन है, पढ़ लीजिएगा, इनको कोई खास बात नहीं है, जनरली पूछे नहीं जाते, बस खाली मेरे ख्याल से कभी आए तो है, मल्टीप्लिकेटर का यूज करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेटिंग इंटरनल मल्टीप्लाई। अब आता है कि स्मूथिंग और फिल्टरिंग टाइम। अब हम देखना चाह रहे हैं कि कुल मिला के जो डेटा दिया हुआ है उसकी जनरल टेंडेंसी देखना चाह रहे हैं कि वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पर बीच में फ्लक्चुएशंस भी हैं जो सीजनल की साइक्लिक की वजह से भी बनेंगे। तो हम उनको एलिमिनेट करके, उनको फिल्टर करके हम देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल क्या टेंडेंसी है डेटा की। तो फिल्टरिंग करने के 2 मेथड है यहाँ पे, एक है मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक क्वेश्चन 3 से लेके 5 मार्क्स का जनरली एग्जाम में आता है फिल्टरिंग करने का, या तो मूविंग एवरेज आएगा या फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आएगा, दोनों ही बहुत ईजी है। तो मूविंग एवरेज मैं पहले ही बताया था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए टाइम सीरीज हमारे पास दी हुई है कोई, यहाँ पे T दिया हुआ है और यहाँ पे Y, तो T मान लेते हैं, फिलहाल 1 2 3 मान, और यहाँ पे भी हम कोई इजी मान लेते हैं जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो मूविंग एवरेज क्या है कि जनरली ये पीरियड बताएगा कि मूविंग एवरेज का पीरियड क्या रखेंगे आप। जैसे पीरियड निकालने के लिए मेथड है कि पीरियड किस तरह निकाला जाता है, तो हम डेटा को प्लॉट करके देखते हैं कि उसमें किस तरह का वेरिएशन आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर हम साइक्लिक वेरिएशन मिलता है तो हम उसी को ही पीरियड मान लेते हैं, मतलब हमें दिखाई देता है कि पहले डेटा घटना शुरू हुआ, घटते 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 फिर डेटा इंक्रीज होना शुरू हो गया है,
ठीक है। तो फिर हम उसको जितना भी वो पीरियड दिखाता है कि 4 ईयर में ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो हम जनरली मूविंग एवरेज निकालते हैं 4 ईयर्स। पर आपने नहीं निकालना है, आपको गिवन होगा कि आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है कि 2 ईयरली निकालना है। तो जैसे यहाँ पे है, तो हम मानते हैं कि अगर हम 3 ईयरली यानी ओड अगर नंबर है, हमें ओड ईयर्स का मूविंग एवरेज निकालना है, तो बड़ा सिंपल है कि मूविंग पहले तो एवरेज, एवरेज का मतलब सम करिए और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोबारा बनाना पड़ेगा, इज 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 4 4 3, मान लीजिए डेटा। तो हमें चाहिए मूविंग एवरेज 3 ईयरली चाहिए। अगर डेटा 3 ईयर्स में है तो हम क्या करेंगे, जो 3 ईयर्स हैं उनका हम मीन निकालेंगे। तो इसका मीन कितना होगा, 4 + 3 7 और 2 9, 9 डिवाइड बाई 3, इट इज 9/3। और इसको पुट करना है, पुट करने का जरा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सेंटर पुट होगा हमेशा जब भी हम निकालेंगे, तो सेंटर बैठा है 2 2 के सामने में 9। अब हमें मूव करते हुए एवरेज निकालना है। मूव करते मतलब कि हम पहली ऑब्जर्वेशन तो इसमें से निकाल देंगे और नेक्स्ट को इंक्लूड कर लेंगे, यानी अब हमें यहाँ तक एवरेज निकालना है। 8 8 और 3 11 और इनके सेंटर में रखेंगे तो 11/3। फिर हम एक ऊपर का निकाल देंगे, फिर हम लास्ट 3 निकालेंगे, तो ये फिर 11/3। फिर हम एक निकाल देंगे, फिर लास्ट का 3 निकालेंगे, तो ये होगा 7 9/3। जितना ऊपर ऑब्जर्वेशन छूटेंगी उतने ही नीचे, यानी 1 यहाँ पे नहीं निकाल पाए, यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज में की ड्रॉबैक है कि हम इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है हमारी, कि हम फर्स्ट ईयर के लिए मूविंग एवरेज की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो दिस इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। अब इसमें आता है वेटेड मूविंग एवरेज। यहाँ तो हमने क्या किया, इक्वल वेट्स दिए हुए हैं। पर अगर हम फोरकास्ट की बात करें, तो फोरकास्ट में जो अगर हम सिनेरियो देखें तो जनरली जो उससे पहले ईयर का इफेक्ट है वो ज्यादा दिखाई देगा, जो 10 साल पहले से का, जो मान लो ट्रेंड की बात करें आप, तो ट्रेंड का नेक्स्ट ईयर में क्या ट्रेंड रहेगा, वो जनरली जो लास्ट ईयर ट्रेंड था उसके बेस पे ज्यादा फोरकास्ट किया जाता है, जबकि 10 साल पहले जो ट्रेंड था उसके बेस पे वो कम किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम वेट देते हैं, तो जो हमारे पुराने ईयर्स हैं उनको हम वेट कम देते हैं, और जो नए ईयर्स हैं उनको हम वेट ज्यादा देते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें 7 के लिए फोरकास्ट करना है, तो हमारे लिए ये नया ईयर हो गया, ये पुराना है। तो हम इसी के ऐसे ही यहाँ पे हम जब हम इसके लिए वेट डिसाइड करेंगे, तो जनरली इसको हम कम वेट देंगे, इसको ज्यादा वेट देंगे, उसको उससे ज्यादा। और वेटेड मीन आप पढ़ ही चुके हैं कि वेटेड मीन हमारा होता है W1 X1 प्लस W2 X2 एंड W3 X3, यानी जितने वेट्स हैं हर ऑब्जर्वेशन को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ द वेट। तो ये वेटेड वेटेड मीन की डेफिनेशन। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो इन सबको वेट देंगे, तो वेट भी आपने नहीं देना है, वो भी गिवन होंगे। जो भी वेट है, मान लीजिए इसको 1 2 3 ही वेट दे रहा है, तो हम जब मीन निकालेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तीनों को सम करेंगे और डिवाइड बाय द वेट्स। तो वेट्स, कुछ लोग वेट निकालने के लिए, W को निकालने के लिए ऐसे भी कर देते हैं, 1/W, सॉरी 1/, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो अगर m m m मूविंग एवरेज becomes a particular case, ठीक है। अगर इस एग्जांपल में देखें, कंप्यूट 3 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द टाइम, एग्जांपल 1 में हमें करना है। तो जनरली द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन रिसीव द लार्जेस्ट वेट एंड द वेट डिक्रीजेस फॉर द ओल्डर डेटा वैल्यू फॉर द गिवन डेटा सेट, एग्जांपल नंबर 1। बंद होने वाला है, चलिए फिर तभी डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। एक बार और आप लॉगिन कर लीजिएगा।